Hello students, today we are going to discuss the events of sexual reproduction. In the part 4 of reproduction in organism, we have already discussed the sexual reproduction, its terminology, which include juvenile and vegetative phase, biennial, perennial, monocarpic, polycarpic plants, and oestrus and menstrual cycle. In the same section, I also explained the overview of the events of sexual reproduction. In this video, we go through all three phases of sexual reproduction. So, the sexual reproduction consists of first pre-fertilization, second is fertilization, and third one is the post-fertilization events. As far as the pre-fertilization event is concerned, it includes gametogenesis and the gamete transfer, right? Gametogenesis include the spermatogenesis, that is the formation of the male gamete, while the oogenesis process refer to the formation of the female gamete. We will discuss in detail in chapter 3, but of course the introductory section I have mentioned here. Now, as far as the fertilization is concerned, fertilization refers to the meeting of two gametes, that is male and the female gamete. Now, this meeting is a result in the formation of the zygote. ओके, एक टर्म और यूज करेंगे आप लोग, दैट इज सिनगैमी. बेसिकली फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, फिर भी अगर हम बहुत प्रिसाइज करें इसको, तो फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द मीटिंग ऑफ द टू गैमीट. इट डजंट मीन that is the formation of the gamete, a formation of or the fusion formation of the zygote. But as far as the syngamy is concerned, the male pronucleus and the female pronucleus fuse together to form the zygote. That means syngamy ensure the formation of the zygote, right? We will discuss the external fertilization as well as the internal fertilization under the fertilization event, right? Now the third event is post fertilization. That means fertilization is done, the zygote is formed.
Now this zygote undergo the divisional stage and then it will form the embryo. So the embryogenesis refers to the formation of the embryo, right? So it's a very simple events: gametogenesis, formation of the gamete, gamete transfer, then external fertilization, internal fertilization under the fertilization process, and the third one is the post fertilization, that is zygote as well as the embryogenesis or embryo formation, right? So these three events are very important for the successful formation of the organism. Now we go through the first event of sexual reproduction, that is pre-fertilization. Now this pre-fertilization, I have already mentioned it. It has gametogenesis as well as the gamete transfer. Before going into the detail of the gametogenesis and the gamete transfer, here I mention some technical terms related to the gametogenesis or related to the different organism, right? फर्स्ट हम लेते हैं होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स. देखिए, होमो रेफर्स टू सेम. सेम मीन्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, राइट? यानी देखने में एक से हो, शेप एंड साइज ऑफ द गैमीट इज सेम, राइट? आप लोगों ने 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, उसमें आप लोगों ने एल्गी का पढ़ा है स्ट्रक्चर, राइट? तो उसमें जब आप लोग पढ़ते हो कि जो गैमीट्स हैं, राइट, जो सेल्स हैं एल्गी की, वही गैमीट्स फॉर्मेशन करने लगती हैं. दे बिहेव लाइक अ गैमीट, राइट? सो इन द लोअर प्लांट्स वी विल सी द होमोगैमीट्स और आइसोगैमीट्स, right? Here we can take the example of the cladophora. It's a alga, right? Now the second is heterogamy. Hetero refers to the different. इसका मतलब होमो में सेम था, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे? डिफरेंट. किस चीज़ में डिफरेंट? मॉर्फोलॉजी डिफर कर रही होगी, उनका शेप, उनका साइज जो है वो डिफर कर रहा होगा, एक्सटर्नली देखने में अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, राइट? तो जो हेट्रोगैमीट्स हैं, वी कैन सी इन द फ्यूकस alga as well as the higher vertebrates like including human beings also, right? Sperm and egg. Now the third term is homothallic and monoecious. Homothallic and monoecious. Homothallic and monoecious, इसको आप bisexual बोल सकते हो. That means a single plant with both the sexes, male as well as female. यानी एक ही प्लांट के ऊपर आपको मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, राइट? होमोथैलिक एंड मोनोशियस. होमोथैलिक जनरली हम टर्म जो है वो फंजाई के थैलस के लिए यूज़ करते हैं, राइट? होमोथैलिक फंगस, राइट? मोनोशियस प्लांट हम इसमें कुकरबिट्स ले सकते हैं एग्जाम्पल,
हम इसमें कोकोनट्स ले सकते हैं, दीज आर द मोनोशियस। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, डेफिनेटली आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। मोनोशियस, कुकरबिट्स एंड कोकोनट्स, ठीक है। सेकेंड इज हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक अगेन जो है, अगर हम बात करें तो जो आपका थैलस है वो डिफर कर रहा है। यहाँ एक टर्म हमने हायर प्लांट्स के लिए लिया है, दैट इज डायोसियस। डायोसियस रेफर्स टू द यूनिसेक्सुअलिटी, यानी मेल और फीमेल प्लांट दोनों जो हैं वो डिफर करेंगे, दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ यूनिसेक्सुअल होंगे, जो मेल प्लांट होगा उसको आप स्टेमिनेट बोलते हो, और जो फीमेल प्लांट होगा उसको हम पिस्टिलेट बोलेंगे। पिस्टिल प्रेजेंट इन द फीमेल फ्लावर। ओवरी के लिए दूसरा टर्म यूज़ कर रहे हो, जबकि जो स्टेम है या स्टेमिन्स जो हैं वो आप मेल स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हो टर्म, ठीक है। नाउ द यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल, अब ये ऑर्गेनिज्म के लिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ, एनिमल्स के लिए टर्म यूज़ कर रहा हूँ। यूनिसेक्सुअल, one body is male and the female body is separate. That means male and female body is separated. Sexual dimorphism मिलेगा आपको, मेल और फीमेल दोनों बॉडी अलग होंगे। We have already discussed the example of unisexual in 11th standard, that is cockroach. Okay. Now, as far as the bisexual or the hermaphrodite is concerned, a single body with male as well as the female sex organs, right? Hermaphrodite, the best example which you have already studied in your 11th, that is earthworm. Okay, other example में आप leeches ले सकते हो, tapeworm ले सकते हो। ये सारे के सारे जो हैं वो बाइसेक्सुअलिटी या हर्माफ्रोडाइट शो करेंगे, ठीक है। नाउ द अनदर थिंग इज, एज फार एज द लोअर प्लांट्स इज कंसर्न, अगर मैं लोअर प्लांट की बात करूं, लोअर प्लांट में हम एल्गी लेंगे, हम ब्रायोफाइटा ले लेते हैं, राइट। अगर हम यहाँ बात करें, एल्गी है, फंजाई है, तो यहाँ पर क्या है, जो हैप्लॉइड बॉडी है उसमें डिवीज़न के थ्रू ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी हैप्लॉइड बॉडी के अंदर माइटोटिक डिवीज़न हो रहे हैं और माइटोटिक डिवीज़न से ही ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, राइट। तो ये तो हम लोअर ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हायर ग्रुप्स की बात करें, राइट, द मेन प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड, यानी आप लोगों ने ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है, राइट। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में आपने 2 स्टेजेस पढ़ी हैं जो ऑल्टरनेटिवली एक के बाद दूसरी आती रहती है, राइट। दोनों एक दूसरे ऑल्टरनेटिवली चलेंगी। One is the gametophytic generation, another is the sporophytic generation. Gametophytic generation जो है वो gamete producing generation है, while the sporophytic generation is the spore producing, right? तो जनरली जो gametophytic generation है अगर वो dominate कर रही है, right, तो हम बोलते हैं हैप्लॉइड या हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जबकि अगर प्लांट में स्पोरोफिटिक जनरेशन जो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है अगर वो डोमिनेट कर रहा है तो हम उसको बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। तो अगर लोअर ग्रुप है तो उसमें जो
हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड बॉडी ही माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू मल्टीप्लाई करती रहेगी और न्यू प्रोजेनी फॉर्म करेगी। लेकिन एज फॉर एज द हायर प्लांट्स इज कंसर्न, द डिप्लॉइड बॉडी, now this diploid body produce a very specialized cells which undergo the meiotic division, and these cells are called myocytes or gamete mother cell। ठीक है, म्योसाइट या गैमीट मदर सेल, इसका मतलब इन सेल्स की जो प्लॉइडी होगी, राइट, दैट प्लॉइडी इज 2n, दैट इज डिप्लॉइड। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड सेल में नहीं होगा। ओके, मियोसिस कभी भी हैप्लॉइड सेल में नहीं होता है। Meiosis is restricted to the reproductive cells, right? तो जो reproductive cells हैं उनके थ्रू gamete produce होंगे, and that reproductive cells are called myocytes or gamete mother cell। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो आपके हायर प्लांट्स हैं, राइट, तो दे विल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियोसाइट्स। एक को हम बोलते हैं एक्स मियोसाइट और दूसरे को बोलते हैं बाई मियोसाइट्स, राइट। तो एक्स मियोसाइट जो है वो आपका फीमेल गैमीटोफाइट बनाएगा और जो बाई मियोसाइट्स है वो आपका मेल गैमीटोफाइट फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ अगर मैं थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लूँ जो हम मियोसाइट्स में, जैसे हम ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लें, तो ह्यूमन बीइंग में जो हम मियोसाइट्स लेंगे, दे हैव 2n इज इक्वल टू 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, क्योंकि हमें मियोसाइट्स में 2n कंसीडर करना है, ठीक है, n नंबर नहीं, क्योंकि n नंबर जो है वो आपका मियोसिस के बाद फॉर्म होगा। हैप्लॉइड सेल्स जो प्रोड्यूस होंगी वो आफ्टर द मियोसिस होंगी, बिफोर द मियोसिस नहीं होंगी। ठीक है, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम 2n is equal to 1262, the largest number of chromosome in plants. Now the third example is rice, 2n is equal to 24, onion 2n is equal to 16. Okay, so these are some important terminology related with the gametogenesis. Now come to the two important event. One is the spermatogenesis, second is the oogenesis. Let us discuss the spermatogenesis first. Spermatogenesis refers to the formation of the male gamete or sperm, right? As far as the sex determination is concerned, the higher plant show XY type of sexual determination, right? That means the male plant having the Y chromosome as well as the female plant having the X chromosome, right? That means the male plant having the stamens while the female plant having the pistil। ठीक है, तो जो गैमीटोजेनेसिस प्रोसेस है, अगर मैं प्लांट्स को पहले ले लेता हूँ, तो प्लांट्स के केस में हम इसको और डिटेल में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं सिर्फ। तो प्लांट्स के केस में आपका जो मॉर्फोलॉजी आप पढ़ के आए हो,
तो प्लांट्स में फ्लावर में जब आप पढ़ते हो तो फ्लावर में एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आपने डिस्कस किया। एंड्रोशियम जो है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हम कंसीडर करते हैं, while the gynoecium refers to the female reproductive part. Androecium is consist of the stamens which produce the pollen grains. This is the male gametophyte, while the female reproductive part, that is gynoecium, consists of the stigma, style and ovary. Ovary having the ovules basically, and that ovules contain the egg cell. So this is how the male and the female gametes is produced in the different structure. The formation of the male gamete is called microsporogenesis, while the formation of the female gamete is called megasporogenesis. Right? As far as the animals is concerned, spermatogenesis in animals done in the specialized structure called testis. Right? थर्ड चैप्टर में इसमें डिटेल में जाएंगे थोड़ा सा। तो जो टेस्टिस हैं आप लोग लाइफ प्रोसेसेस पढ़ते आए हो उसमें, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनियल सेल्स हैं, एंड दैट स्पर्मेटोगोनियल सेल्स अंडरगो द spermatogenesis process and they will produce a functional spermatozoa or sperm cell. Right? So ये थोड़ा सा डिवीजन है। अगर हम oogenesis की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ द एग, तो फीमेल बॉडी में जो oogenesis है वो, अगर मैं ह्यूमन फीमेल का एग्जांपल ले लूँ स्पेसिफिक, तो ह्यूमन फीमेल में oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद प्यूबर्टी तक उसमें आपका जो जितने भी एग्स या जितने भी oocytes बनने थे वो बन चुके होते हैं। फिर उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑपरेट होती रहती है, राइट, एट एवरी मंथ, एंड दीज oocyte जो immature oocytes हैं they will attain the maturity, right? तो ये थोड़ा सा डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, या सिर्फ मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है इसका, राइट, नॉट इनटू द डिटेल। ओके, नाउ द सेकंड इज गैमीट ट्रांसफर। देखिए गैमीट ट्रांसफर जो है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ऑर्गेनिज्म में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बॉडी के अंदर हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है, राइट। यहाँ मैं पहले एग्जांपल जो है वो प्लांट्स का लूँगा, ठीक है। अब मैं अगर प्लांट्स लूँगा तो प्लांट्स को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ, right? In 11th standard you already studied lower plants as well as the higher plants, right? Higher category में हम जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को कंसीडर करते हैं, जबकि जो लोअर कैटेगरी है हमारी वो आपका एल्गी, फिर उसके बाद ब्रायो, देन टेरिडोफाइट्स। तो ये तीन जो ग्रुप मैंने बोले हैं लोअर कैटेगरी में, तो हम इसमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंसीडर करते हैं, टेक्निकल टर्म है उसके लिए ज़ूडियोगैमी। ज़ूडियोगैमी यानी जो फर्टिलाइजेशन है वो एनिमल लाइक, जू रेफर्स टू एनिमल, ज़ूडियोगैमी, राइट। एनिमल लाइक का मतलब ये हुआ कि एनिमल में जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, राइट,
तो मेल गैमीट जो मोटाइल है, इसका मतलब प्लांट्स के अंदर जो लोअर प्लांट्स हैं, देयर मेल गैमीट इज ऑल्सो मोटाइल. ओके, सो as far as the male gamete of the algae of the bryophytes is concerned, their male gamete is motile, so definitely the male gamete move towards the female gamete. अब इस मूवमेंट के लिए उसको मीडियम चाहिए, एंड द मीडियम इज वाटर, राइट. मीडियम इज वाटर. आप लोगों ने पढ़ा एल्गी, ब्रायो और टेरिडो जो हैं वो नियर द वेसिनिटी ऑफ वाटर मिलते हैं, यानी वाटर जहाँ होगा वहाँ उसका रीजन है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इनका वाटर के अंदर ही होगा, राइट. अब दूसरी कैटेगरी आती है. अब दूसरी कैटेगरी में हमारे हायर प्लांट्स आएंगे, यानी हमारा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, राइट. Gymno and angiosperm show the siphonogamy. Siphonogamy. Siphon refers to the tube, right? यहाँ ट्यूब कंसर्न कर रहे हैं हम pollen tube से. So the pollen tube is responsible or provide the path for the movement of the male gamete, right? Through this pollen tube, the male gamete reaches to the female gamete, right? तो अगर pollen tube नहीं होगी तो ये female gamete तक नहीं पहुंच सकते, right? One thing. तो ये जो approaching है, ये approaching आपका done because of this pollination. लोअर स्टैंडर्ड में या लोअर क्लासेस में आपने एक जनरल सी डेफिनेशन पढ़ी है पॉलिनेशन की, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ठीक है. अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं. अब स्टिग्मा जो है वो उसी फ्लावर का है, राइट, या स्टिग्मा जो है वो दूसरे फ्लावर का है. अगर भाई उसी फ्लावर का है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. इफ द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, यानी एक फ्लावर मेल है, दूसरा फ्लावर जो है फीमेल अलग है, ठीक है, तो यहाँ क्या है, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर तक पहुँचने के लिए पॉलन ग्रेन्स रिक्वायर द एजेंट. तो जहाँ एजेंट की रिक्वायरमेंट हो जाएगी देन सच पॉलिनेशन इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, राइट. अब जब क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो यहाँ पर इनको एजेंट भी चाहिए, और एजेंट जो हैं वो आपके बायोटिक भी हो सकते हैं, राइट. पॉलिनेशन के लिए एजेंट आपके बायोटिक भी हो सकते हैं और अबायोटिक भी हो सकते हैं, राइट. अगर हम बायोटिक एजेंट की बात करें तो वैरायटी ऑफ द इंसेक्ट, ठीक है, यानी इंसेक्ट हो सकते हैं. अगर इंसेक्ट पॉलिनेट कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एंटेमोफिली, ठीक है. बर्ड्स हो सकती हैं, अगर बर्ड्स पॉलिनेट कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली, राइट. बैट्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कायरोप्टेरोफिली, ठीक है. विंड एंड वाटर, दीज आर द अबायोटिक एजेंट. विंड एंड वाटर. विंड अगर एज अ एजेंट यूज हो रही है then it is called एनीमोफिली, ठीक है. और अगर वाटर यूज हो रहा है then it is called हाइड्रोफिली. ओके. अब यहाँ एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि अगर मान लीजिए पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है then it is okay, means the progeny is well protected,
and the formation of the progeny is 100% sure. ठीक है, but the problem arises in the cross pollination. भाई देखिए, क्रॉस पॉलिनेशन में व्हेन वी यूज द डिफरेंट एजेंट, तो वो हमेशा ऐसा थोड़ी ना कि कंडीशंस जो है वो फेवरेबल हों. अगर मान लीजिए वाटर एज अ एजेंट यूज आप कर रहे हैं और जिस टाइम पर पॉलिनेशन रिलीज हुआ वाटर करंट फास्ट हो गया, राइट, या प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोजेनी फॉर्मेशन को में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, राइट. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर जो एक्सटर्नल एजेंट हैं वो डोमिनेट कर गए तो स्पीशीज फॉर्मेशन में दिक्कत आती है. नाउ कम टू द गैमीट ट्रांसफर इन एनिमल्स. अब देखिए, एनिमल में भी फिर हम भाई फर्टिलाइजेशन पे डिपेंड करेंगे कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा है या फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है. अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो डेफिनेटली वाटर इज द मीडियम, अगेन लाइक इन केस ऑफ पाइसेस, लाइक इन केस ऑफ एम्फीबियंस, राइट. तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहे हैं. अब यहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए जहाँ मीडियम वाटर है, फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन इन द रिलीज ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमीट, राइट. और हम कह सकते हैं द फॉर्मेशन. अगर मान लीजिए मेल गैमीट पहले मैच्योर हो गया और फीमेल गैमीट बाद में मैच्योर हो रहा है, तो इसका मतलब मेल गैमीट जो है वो पहले रिलीज कर जाएगा मैच्योर होके, राइट. तो सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, पहली चीज़. दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो प्रेडेटर्स हैं उनसे भी आपको सेफ्टी चाहिए, राइट. वाटर करंट है उससे भी सेफ्टी होनी चाहिए. तो इसका मतलब इन ए नटसेल अगर हम ये कहें तो हमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले हैं उसमें प्रोजेनी इज मोर वनरेबल टू द प्रेडेटर्स. अब आते हैं जिसमें कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है. दैट मीन्स द gametes or the male gamete directly released into the body of the female, right. अब डायरेक्टली बॉडी में जा रहा है तो इसका मतलब ना तो लॉस है, राइट. मोर्टेलिटी रेट इज वेरी वेरी लेस, देन द प्रोजेनी इज वेल प्रोटेक्टेड, राइट. तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये मिल जाती है कि जो आपका गैमीट ट्रांसफ़र है इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द फर्टिलाइजेशन, कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है. सो आई होप कि आप लोगों को जो सेक्सुअल इवेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, राइट. और इसके बाद जो है इसमें आपका फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मुझे और डिटेल में जाना है, राइट. आई होप कि गैमीटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफ़र इज़ क्लियर टू यू. स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग these topics, then you can mention in the comment box. Okay, thank you very much.